بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا 9 چیپٹر اس ٹائم آلموسٹ یہ بھی فنش ہونے والا ہے، تو اس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپکس ڈسکس کیے، پاپولیشن کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ اس کے کون سے مسائل یا کون سے اثرات ہمارے ملک پہ ہیں، اور یہ آپ کی جو نقل مکانی کی بات کی مزدوروں کی، اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ حرکت پذیری وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیبر فورس کے حوالے سے، جمعیت افرادی قوت کے حوالے سے، ان کے حقائق کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ پاکستان میں جو مزدور ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس کی ریزن آپ کے سامنے ہے۔ ریزن یہ ہے کہ بیچاروں کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت ہیکٹک ہوتا ہے۔ ایک مزدور ہے جو بلڈنگ بناتا ہے، سارا دن وہ کتنی سخت قسم کی مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کو بدلے میں جو معاوضہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ملتا جتنی وہ ایفرٹ لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان میں بے چینی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہڑتالیں ہیں، جلوس وہ اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی محنت کا پراپر معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مزدور ایسے ہوتے ہیں جن کو کام بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ اب ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں جو افرادی قوت ہے اس کے حقائق کیا ہیں اور مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے روزگار کے حصول میں مسئلہ۔ پاکستان میں ظاہری بات ہے آبادی اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے کہ روزگار کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ افراط آبادی، یہی وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی بھی بتائی کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جو مزدوروں کی رسد ہے نا وہ طلب کے مقابلے میں زیادہ ہے، رسد زیادہ طلب کم ہے۔ جب طلب کم ہے، رسد بہت زیادہ ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے مزدور کیا رہتے ہیں، بیکار رہتے ہیں۔ پھر آبادی کی جو شرح افزائش ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر سال مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، جبکہ ان کی یوٹیلائزیشن اتنی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک تو ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی کھپت کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں اس کی کیا ہے، کم شرح اجرت۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ مزدور کو جو ویجز مل رہی ہیں وہ اس کی ایفرٹ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے آنیسٹلی اسپیکنگ واقعی بہت کم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جتنا کام کرتے ہیں، جتنی ٹف ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جو ان کو معاوضہ ملتا ہے اس سے اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی پھر اجرتوں سے یہی وجہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ان کی مختتم پیداوار کی نسبت ان کی اجرت کیا ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ اب وہی بات ہے، اب ہر مزدور کا یہ دل کرتا ہے، بلکہ ہر انسان کے اندر یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ارن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بنیادی ضروریات کو اچھے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہے کمزور قوت سودے بازی۔ اب ظاہری بات ہے محنت ایسی چیز ہے جس کو آپ ذخیرہ تو نہیں کر سکتے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب سستی ہیں نہ بیچو، جب وہ مہنگی ہوگی تو بیچ دے۔ اب محنت ایسی تو نہیں ہے چیز کہ جس کو آپ ریزرو کر سکو، یہ تو وقت گزرا، آپ کی ایفرٹ ضائع چاہے آپ نے کی ہے یا نہیں۔ اب جو مزدوروں کی سودے بازی کی قوت ہے وہ کیا ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ مزدور ہوتے بھی تعداد میں زیادہ ہیں اور ان میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے ظاہری بات ہے یہ منظم نہیں ہوتے، متحد نہیں ہوتے۔ جو آجر ہوتا ہے وہ اسی کمزوری سے کیا کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان کا استحصال، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے مزدوروں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے اتنا زیادہ کام لینے کے بعد بھی جو ان کی اجرتیں ہوتی ہیں ان سے ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ان کو پتہ ہے کہ کم علمی کی وجہ سے مزدور کبھی بھی اپنے حق کے لیے شاید اس طرح کھڑا نہ ہو پائے جس طرح سے ہونا چاہیے، تو وہ اسی چیز کو کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چوتھا ہے ملازمت کا عدم تحفظ۔ جو چھوٹے یونٹ پہ کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ کسی بھی وقت ان کو ملازمت سے نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو سیکیورٹی نہیں دی جاتی، ان کو ہر وقت خدشہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی ان کی ٹرمینیشن ہو سکتی ہے۔ مالک جب چاہے مزدوروں کی چھانٹی کر کے انہیں کام سے کیا کرتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، وہ تو مالک ہے نا، اس کے پاس اختیارات ہیں جبکہ عام انسان کے پاس وہ اختیار ہے ہی نہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سیکیور کرے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی اگر ہمارے ہاتھ دیکھا جائے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کس وقت کب کس وجہ سے جاب سے ٹرمینیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے غیر انسانی سلوک۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو مزدور ہوتے ہیں ان کو یہی ہوتے کہ زیادہ تر ہم نے بھی دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ مزدوروں کو اکثر لوگ انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔
इनके साथ ऐसे सलूक किया जाता है कि जैसे ये लोग पता नहीं कोई बहुत ही अदना मखलूक है। इनकी मजबूरी का, गुर्बत का एक फ़ायदा ही उठाया जाता है। इनके लिए ज़ाहिर बात है हमदर्दी भी नहीं होती। उनसे अगर कोई भी छोटी सी भी गलती हो जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। यानी ये चीज़ अगर देखा जाए तो गलत है ना। एक इंसान है, कोई बातें अगर गलती हो जाती है, अगर उसको बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल कैटेगरी की हद तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह किया जाएगा बहुत ज़्यादा सिर्फ इस वजह से। अब हमारे मुल्क में अगर कानून की भी हम बात करें, वो भी ऐसा है, अमीर बच जाता है और गरीब बेचारा ना करदा गुनाहों की भी सज़ा भुगत रहा होता है। तो ये वही बात है कि मज़दूरों के साथ जो सलूक किया जाता है वो क्या है, गैर इंसानी है। फिर है बिला मुआवजा खिदमात। छोटी सनतों में काम करने वाले मज़दूरों से अक्सर औकात उनकी जो जो मुआवजा है, बिला मुआवजा उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, या फिर उनको मुआवजा भी दिया जाए तो इतना मामूली होता है। तो ज़ाहिर बात है हर इंसान के अंदर जज्बात होते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा काम आपसे लेके आपको बहुत मामूली सा मुआवजा दिया जाए तो वो करते हैं बेचारे, कर भी कुछ नहीं सकते, हालात से मजबूर हैं कि उनके बेचारों के पास ऑप्शन ही कोई नहीं होता बजाय इसके कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो ज़ाहिर बात है किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये चीज़ होती है। फिर है काम के गैर तसल्ली बख्श हालात। मज़दूरों के जो काम के हालात हैं वो भी बेहतर नहीं होते। इन्हें ऐसी जगहों पे भेज देते हैं जहाँ पे ना रोशनी होती है, ना हवा, ना पानी, जिससे इनकी हेल्थ कंडीशन क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ज़ाहिर बात है जब इंसान की सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो उसकी पैदावारी सलाहियत भी क्या होगी, या उसकी इस्ताद कार, या दूसरे अल्फाज में जिसको आप एफिशिएंसी भी कहते हैं, वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे। जब सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फिर है समाजी तहफ़्फ़ुज़ात की कमी। अक्सर सनती यूनिट में जो कारखाने हैं या एहलखाना के लिए जो भी तहफ़्फ़ुज़ात उसकी कमी है, जैसे कि तिब्बी या रहायशी सहूलियात है वो नहीं है। बच्चों के लिए तालीम की मुनासिब सहूलतें मौजूद नहीं। अब हादसात की सूरत में ज़ाहिर बात है उनको ऐसी फैसिलिटीज़ फ़राहम नहीं की जाती कि वो सर्वाइव कर सके। ज़ाहिर बात उनको तो सैलरी इतनी पूरी नहीं मिलती जितनी वो लोग एफ़र्ट देते हैं। दौरान मुलाजमत तरबियती प्रोग्राम्स का फुकदान। फिर ये भी नहीं है कि अक्सर इदारों में मुलाजमत के दरमियान कोई प्रोग्राम या कोई ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती जिससे इस्ताद कार बढ़ाई जा सके। ठीक है, हालांकि होना यही चाहिए कि इस किस्म के जो तरबियती कोर्सेज़ है वो शुरू होने चाहिए ताकि मज़दूरों की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा हो। ठीक है, अब आगे है गैर मुनज़्ज़म मज़दूर अंजुमनें। अक्सर पेशों में मज़दूर अंजुमन होती हैं और इदारों में ये मौजूद होती हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है इसको ज़्यादा इनका जो गैर मुनज़्ज़म जो अंजुमनें होती हैं उनका किरदार इतना पुख्ता नहीं होता। फिर अक्सर जो आजिर और सनतकार है तकसीम करके हुकूमत के असूल पर अमल करते हैं और दोहरी मज़दूर अंजुमनें बना लेते हैं, जिससे फिर कारकुन मुतहद यानी मुनज़्ज़म हो तो आपके जो हालात या मामला हैं उनको सेट डाउन किया जा सकता है। जब ये अंजुमनें ही कमज़ोर होगी तो हालात को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। फिर है ट्रांसपोर्ट का मसला। मज़दूरों को सनती यूनिट तक पहुंचने के लिए ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं होती, हाज़िरी में देर हो जाती है और वक्त भी क्या जाता है ज़ाया, क्योंकि लोगों के उनके हालात ही इतने अच्छे नहीं। वो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट एक मज़दूर कैसे अवेल करेगा ये आप खुद सोचें। जिसकी सैलरी हार्डली उसकी बेसिक नीड को भी नहीं पूरा कर पा रही, वो आने जाने के लिए, एक ड्रॉप के लिए कोई हाई फाई कन्वेंस तो नहीं ना अफोर्ड करेगा। फिर अदम एतमादी। मज़दूरों और जो मालिक के दरमियान होता है अदम एतमाद की फ़िज़ा होती है। इनके ताल्लुकात खुशगवार नहीं होते। अब ज़ाहिर बात है कि मज़दूर ये समझता है कि ये दिल लगा के काम नहीं करता, ठीक है, जबकि कारकुन समझता है कि इसकी ये खून पसीने की कमाई से मालिक ऐश कर रहा है। यानी ये दोनों तरफ ना कुछ ऐसी नेगेटिव थिंकिंग्स है जिसकी वजह से दोनों पार्टीज़ में क्या रहती है, खिंचाव किसी कैफियत रहती है। फिर सेहत के मसाइल। मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है, सेहत की सहूलियात ना होने की वजह से जो ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से क्या होती है, कमज़ोर। अब सारी बात है कि वो उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। जब आपके सेहत के मसाइल सॉल्व जब तक नहीं होंगे आप उतना मोटिवेशन या डिवोशन के साथ काम नहीं कर सकेंगे। फिर है मेहनत की कम हरकत पजीरी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों और ममालिक में जो है सकाफ़ती विरसे और रहन सहन में फ़र्क की वजह से कम हरकत पजीर होती है। नीज़ अपने घर और अहल खाना की मोहब्बत में भी बाज़ औक़ात दूसरी जगहों पर जाने से रोकती है और जिद्दत और ममालिक में रोज़गार के लिए बेहतर मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया जाता। फिर है
अफरादी क़ुव्वत की कमी, पाकिस्तान में फ़नी और तकनीकी तालीम की कमी है। ज़ाहिर बात है, फिर जब ये टेक्निक्स नहीं होंगी या लोगों को ट्रेन नहीं किया जाएगा तो लोगों में हुनरमंद अफराद की कमी ही होगी। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि ऐसे इदारे बनाने चाहिए जहाँ लोगों को ट्रेन किया जा सके ताकि वो अपनी सलाहियतों को सही से बरूए कार ला के पैदावार को बढ़ा सकें। अब यहाँ पे ये है कि लोगों की इस्तेदाद कार इस वजह से पस्त है। अब जैसे कोई मशीनरी है, अगर हम इसे नो हाउ नहीं होगा कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, तो प्रोडक्टिविटी या पैदावार किस तरह से बढ़ाई जा सकेगी। तो ये सारे वो मसाइल हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कि ये जो लेबर फ़ोर्स के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, इनको हल कैसे किया जा सकता है। ये तो मसाइल तो हो गए, अब इसका सलूशन क्या है। रोज़गार के दफातर का क़याम। पाकिस्तान में जो अफरादी क़ुव्वत है, इसको चूँकि रोज़गार के मौक़ों के बारे में एक ये भी तो वजह है कि लोगों को इल्म नहीं होता। कभी जॉब्स आती भी हैं तो बहुत सारी इग्नोरेंट रहने की वजह से ही लोग नहीं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाते। अब ज़ाहिर बात है, रोज़गार के दफातर कायम करना चाहिए, इनको मौसर और मुस्तैद बनाना चाहिए। ऐसा करने से मुख्तलिफ़ पेशों और शोबों में जमीयत मेहनत की खपत का बाकायदा रिकॉर्ड और इनकी रसद से मुतालिक अदाद व शुमार मैसर आएंगे और लेबर फ़ोर्स की बेहतर अंदाज में क्या हो सकेगी, रहनुमाई। ठीक है। फिर है आपकी मुनासिब शरह उजरत। वही बात जो मैं आपको पीछे डिस्कस कर रही थी कि मज़दूरों का इस्तेहसाल होता है, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, उनकी जो बुनियादी जो उजरतें हैं उसको भी कम से कम इतना तो ज़रूर देखना चाहिए ना कि मुल्क में कितनी महंगाई है और उनकी ज़रूरियात आया इनसे पूरी भी होंगी कि नहीं। और कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद उनकी उजरतों में मुनासिब इजाफ़ा भी ज़रूरी है। फिर है मेरिट पे भर्ती। पाकिस्तान में जो मैसर असामियों पर ज़ाहिर बात है सियासी वाबस्तगी है, ताल्लुकात है, फेवरेटिज़म है या रिश्वत दे के होती है, जबकि मेरिट को पीछे डाल दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं मगर गरीब होते हैं और काम तक ज़ाहिर बात उनकी अप्रोच नहीं होती, ये बेचारे लोगों की हक तलफी होती है। लिहाजा मेरिट को भर्ती का मेयार बनाना बहुत ज़रूरी है। मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़। फिर है पाकिस्तान में सरकारी और निजी दोनों शोबों में मुलाजिमीन को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। सरकारी शोबा में अगर कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी भर्ती है और निजी शोबे में आपने अजर के अजराना अख्तियारात की वजह से मुलाजमीन को कोई पता नहीं होता कि किसी भी वक्त उनको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर इतना दिल लगा के काम नहीं कर पाते। इसलिए या तो ज़रूरत इस अमर की है कि मुलाजमीन को सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और तरक्की के मुनासिब मौके भी मैसर आने चाहिए। फिर है समाजी तहफ़्फ़ुज़। मज़दूरों को बुढ़ापे की पेंशन, बीमारी के दौरान इलाज, मुआलजे, हादसात की सूरत में क्या होना चाहिए, माली इमदाद, बच्चों की तालीम और शादी के मौके पर इमदाद दी जानी चाहिए। नीज़ रहाइश, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस की सहूलतें भी देनी चाहिए ताकि वो मुतमईन होकर काम करें। अब ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे, इतनी तो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए, तो वो मज़दूर भी मुतमईन होंगे और इनकी पैदावारी सलाहियत भी बढ़ेगी। बेहतर हालात और मुनासिब औकात। अब पाकिस्तान में जो लेबर फ़ोर्स के काम के हालात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए सफाई, हवादार जगह होनी चाहिए, रोशनी का सही से इंतज़ाम, वेंटिलेशन होनी चाहिए। घुटन ज़दा माहौल में जब उनसे काम लिया जाएगा तो वो उस तरह से परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब ये होना चाहिए कि अगर उनसे अजाफ़ी काम ले रहे हैं तो उसका सेपरेटली मुआवजा दिया जाए। नीज़ बेकार और मुफ्त की सर्विस लेने पर क्या होनी चाहिए, पाबंदी। मुनज़्ज़म और मुस्तैद मज़दूर अंजुमनें। पाकिस्तान में मेहनत कशों को इस्तेहसाल से बचाने, मज़दूरों की सौदेबाजी की क़ुव्वत को मजबूत करने के लिए और उजरतों के हसूल जो भी मामलात हैं इसके लिए मज़दूर यूनियन को मजबूत और फ़ाल बनाना ज़रूरी है कि लेबर्स के जो मसाइल हैं, उनके जो मुतालबात हैं वो लेबर यूनियन ने ही उसको लेके चलना है ना। तो ज़ाहिर बात है इस सेटअप को अच्छा बनाना ज़रूरी है ताकि मज़दूरों के इशूज़ का पता चलता है। फिर है फ़नी, तकनीकी और पेशा वराना तालीम व तरबियत। लेबर फ़ोर्स की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर बात है कि दिल का हर एक चाहता है कि एफिशिएंसी बढ़े। एक जो मज़दूर है उनकी पैदावारी सलाहियतों में इजाफ़ा करने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें पेशा वराना तालीम देनी चाहिए। ट्रेनिंग, ऐसे प्रोग्राम तरतीब देने चाहिए जिससे वो अपनी इस्तेफ़ादा कर सकें, पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जा सके, इतना नॉलेज उनमें होना चाहिए। मेहनत की हरकत पज़ीरी में इजाफ़ा। अब ज़ाहिर बात है मेहनत की हरकत पज़ीरी में जो भी रुकावटें हैं इसको दूर करें, इसको आसान करें ताकि जिन मुकामात और इलाका जात में मेहनत की तलब ज़्यादा हो वहाँ तक मेहनत कशों की रसाई क्या हो, आसान। इस तरह जो ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में मेहनत की रसद कम गुंजान आबाद इलाकों की तरफ क्या करेगी, हरकत, जिससे ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों के कारोबारी और तिजारती यूनिट को मुनासिब और ज़रूरी कारकुन मैसर आएंगे बल्कि दूसरी तरफ कुछ इलाकों से आबादी का दबाव क्या होगा,
کم ہوگا۔ مزدور مالک کے خوشگوار تعلقات، ظاہری بات ہے کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دونوں سائڈس کو دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ ان کے درمیان جتنی زیادہ تعلقات اچھے ہوں گے، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کریں گے تو کام کرنے کا ماحول اچھا ہوگا، جس سے ظاہری بات ہے کہ پیداوار پہ اچھا اثر ہوگا۔ اگر ہڑتالیں ہوں گی، تالہ بندیاں، جلد سے جلوس ہوں گی تو ظاہری بات ہے پھر پیداوار تو نہیں بڑھتی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نوبت نہ آئے یہاں تک۔ معاملات مل کے باہمی رضامندی سے حل ہو جانے چاہیے۔ پاکستان میں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو مزدور اور مالک کے تعلقات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، خوشگوار۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے لیبر فورس کے بارے میں ڈسکس کیا، اور لیبر فورس پاکستان کے اندر کس کس طرح کے مسائل سے دوچار ہے اور اس مسائل کو کیسے سولو کیا جا سکتا ہے، ہم نے اس بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا۔ اگلے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے افرادی قوت کی منصوبہ بندی، یعنی مین پاور پلاننگ۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔